बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस स्पेशल प्रेस मीट में आप तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूँ। न्यू शम स्कूल भटकल और CIO चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड जमात इस्लामी भटकल इसके स्टार्ट से हम एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। एक इवेंट है जिसका माहौलियात से रिलेटेड है। इंशाल्लाह उसकी तफसीलात हमारे जिम्मेदारान आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर डाइस पर मौजूद है मौलाना जुबैर साहब और हमारे इस इदारे के चेयरमैन जनाब काजी नज़ीर इंजीनियर काजी साहब नज़ीर अहमद काजी साहब एंड प्रिंसिपल हमारे लियाकत अली साहब एंड वाइस चेयरमैन कुतुब मौलाना। मैं आप तमाम का और एक मरतबा हमारे शम्स टीम की जानिब से आपका इस्तेमाल करता हूँ। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज के इस कैंपेन का ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We at New Sham School believe in transformational education. Education doesn't confine only with respect to the textbooks and classroom. We have the whole universe where we have to learn, and whatever we are able to learn, it should help us in order to connect ourselves to our Creator. So this is a small initiative where New Sham School will join hands with Children's Islamic Organization of India. So CIO is conducting a 1-month national-wide campaign with a mission of planting 1 million saplings all over the nation. So in line with this, we at New Sham School will also have a series of programs for next 2 weeks, with the first event to be this press release, where our children will also address the press in order to emphasize on the importance of this campaign. In addition to that, we are also planning for plantation across Bhatkal in all the masajids, inshallah, as well as our children will also visit all the government offices in upcoming days in order to create awareness. In addition to this, we are also planning an eco rally in the next week. We expect the support of all the media personals as well as our parents, and I make this appeal to all the institutions that let us join hands in this noble mission. May Allah help all of us in order to work as one single team to make this world a better place for upcoming future. Thank you so much. Assalamu alaikum. Good morning to everyone. My dear friends, close your eyes for a moment and imagine a world without trees. No cool shade, no birds singing, no fruits and no air to breathe. Feels awful, doesn't it? Today I want to talk about something that matters greatly to all of us. Protecting the environment and the simple but the powerful way to do it. Planting trees. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيقول منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said, if a Muslim plants a tree or sows a seed and then a bird or a person or an animal eats from it, it is regarded as a charity for him. Sahih Bukhari. Isn't it beautiful? Even a small act like planting a tree is sadaqah. That's why I'm very happy to tell you about the wonderful mission called Mission Plantation that is happening right now. It is an initiative by CIO under Jamaat Islami Hind, where they plan to plant 1 million saplings all across India. Isn't that amazing? This mission is a great example to protect the earth together. Even if we are young, still we can make a great difference. We, the students of New Sham School, proudly join this mission and wholeheartedly invite our parents to participate alongside us. So let us take this mission as our own. Let us be kind to the earth just like our Prophet taught us. Thank you, and let's all go plant some goodness. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي
रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम मेंबरान इंतजामिया, असातिज़ाए कराम व मुअल्लिमात और मेरी प्यारी साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हमें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया और दरख्तों जैसी नियामतें अता फरमाई। तमाम दरूद व सलाम उस नबी पर जिसने हमको जीना सिखाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरा नाम औफा अमल है और आज मैं आपके सामने शजरकारी यानी दरख्त लगाने के उन्वान पर कुछ कहना चाहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में फरमाया, वहुवल्लज़ी अंज़ल मिनस्समाई माअन फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शैइन। वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उससे हर किस्म के दरख्त और सब्ज़े उगाए। यह आयत हमें यह बताती है कि दरख्त अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। दरख्त हमें साया देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। मेरे साथियों, क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर क़यामत कायम होने लगे और तुम में से किसी के हाथ में एक पौधा हो और अगर वो लगा सकता हो तो ज़रूर लगाए। सुभान अल्लाह, देखा आपने, क़यामत जैसे वक्त में भी हमें दरख्त लगाने की तालीम दी जा रही है। एक और हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान पौधा लगाता है या खेती करता है और उससे कोई परिंदा, इंसान या जानवर खाता है तो वो उसके लिए सदका बन जाता है। यानी एक छोटा सा पौधा भी लगाने से हमारा सदका जारिया बन सकता है। दरख्त लगाना हमारी इबादत है, सदका है, खिदमत खल्क है और इंसानी जिम्मेदारी है। तो आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपने स्कूल में, मोहल्ले में और घर के आसपास दरख्त लगाएंगे और उनका ख्याल रखेंगे। अल्लाह से ये दुआ है कि वो हमको अमल करने की तौफीक दे। आमीन। ये जो आज मिशन के तौर पे, मुहिम के तौर पे जो हम ले रहे हैं वो है प्लांटेशन का। इसमें दो चीज़ें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक है CIO, चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा ये प्लांटेशन की मुहिम है। CIO जमात इस्लामी का बच्चों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे बच्चों को तरबियत की जाती है, उनके अंदर दीन का सही फहम और समझ पैदा की जाती है और दीन का जो वसी कॉन्सेप्ट है उसको उनके अंदर उजागर करने की कोशिश की जाती है। और जब इन छोटे बच्चों के अंदर जो बिल्कुल कच्ची दीवार की तरह होते हैं, उनके अंदर जो चीज़ लिख दी जाती है, जो स्क्रिप्ट उनके अंदर लिख दी जाती है, वो उन्हें सारी उम्र फ़ायदा पहुँचाती है। तो इस लिहाज से CIO को इंशाअल्लाह यहाँ शम्स स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है कि छोटे बच्चों के अंदर दीन का सही मफ़हूम पैदा किया जाए और उनके अंदर दीनी शऊर पैदा किया जाए। ये नंबर 1 पहला नंबर। दूसरा है कि इस वक्त सारी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी चीज़ों के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसें तो होती हैं, लेकिन इस पर काम नहीं हो पाता, इस पर जो तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो हम इस शम्स स्कूल के जरिए से, इस प्लेटफॉर्म से 13 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक 2 हफ्ते की मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर घर के अंदर एक दरख्त बोया जाए। और हम सब जानते हैं कि दरख्त की क्या अहमियत है, उसके क्या फ़वाइद हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अलबत्ता ज़रूरत इस बात की है कि इसको कैसे मोबिलाइज किया जाए, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारी मुहिम ये है कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। हमारी सोच आलमी हो, आफाकी सोच हो, सारे ग्लोब के अंदर सारी इंसानियत को जो है अच्छी हवा, अच्छा पानी मुहैया किया जाए, जो है उन्हें ज़िंदगी का बेहतर सामान पैदा किया जाए। अलबत्ता इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? वो लोकल, हर शख्स अपने तौर पे ये काम करना होगा। तो हम तमाम लोगों को, बढ़कर के तमाम शहरियों से ये अपील करते हैं कि हर शख्स अगर अपने घर के सामने, अपने पिछवाड़े में अगर एक दरख्त, एक पौधा लगा देता है तो आप सोचें कि बटकल में हो सकता है 25,000 से ज़्यादा मकानात हों, और एक साल के अंदर अगर एक पौधा लगाए, उसकी नशोनुमा करें, तो एक साल के अंदर 25,000 दरख्त जो है उग सकते हैं।
तो इसी तरह अगर 5-10 साल तक ये मुहिम जारी रही तो पूरा भटकल का शहर जो है ग्रीन हो जाएगा। आज जो जंगल का मामला है, फॉरेस्ट का मामला है, वो ये कि दरख्तों के जंगल के बजाय कंक्रीट के जंगल उगा रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर बड़े बड़े सिटीज के अंदर आप देखेंगे कि जंगल दरख्तों के नहीं उग रहे हैं बल्कि कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं, जिससे जो मसाइल पैदा होते हैं उससे हम सब वाकिफ हैं, उसको बयान करने की जरूरत नहीं। अलबत्ता एक्शन के तौर पर जो काम हमें इस वक्त करना है, हर शख्स अपने तौर पर ये फैसला करे कि मैं एक पौधा लगाऊंगा। अगर 1 साल में 1 पौधा लगाया जाए तो इसके कितने मस्बत असरात सारी दुनिया के अंदर फैल सकते हैं, इसको आप सोच सकते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर है कि इस मुहिम के जरिए से हम चाहते हैं कि भटकल का हर शहरी इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, हर शख्स जो है एक पौधा लगाने की कोशिश करे। मुख्तलिफ मुकाबात होते हैं, घरों के सामने एक जगह होती है, मसाजिद के सामने जगह होती है। छोटी छोटी दरख्त उगाने के लिए कोई बहुत बड़ा जंगल एरिया नहीं चाहिए, छोटे कुछ नहीं तो छोटे से गमले के अंदर भी एक दरख्त उगाया जा सकता है, जिससे जो है बेहतर ऑक्सीजन और बेहतर जो है माहौलियात के अंदर तब्दीली आ सकती है। तो हम अपील करते हैं तमाम लोगों से कि इस काम में, शम्स का इस मुहिम में आप सब हिस्सा लें और पूरे भटकल को एक ग्रीन भटकल बनाएं। जज़ाकल्लाह। जमात इस्लामी कर्नाटका माहौलियात के ताल्लुक से अवेयरनेस पैदा कर रही है और आज के हालात में हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कारखाने, गाड़ियाँ और गलाजतें जो हैं, इसकी वजह से माहौलियात के अंदर खराबी पैदा हो रही है। इस्लाम ने माहौलियात को बेहतर बनाने की तालीम दी है। अभी जो यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो रहा है माहौलियात को के अंदर तब्दीली लाने के लिए, उसको पाकीज़ा बनाने के लिए, शजरकारी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इस्लाम ने शजरकारी, दरख्त को और पौधों को लगाने की बड़ी तारीफ की है और ताकीद भी आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुमको मौत आ जाए या क़यामत आ जाए और तुम्हारे हाथ में दरख्त का एक टहनी हो और तुम मौत आने से पहले ज़मीन के अंदर उस टहनी को लगा दो। आप देखते हैं कि जो दरख्त होते हैं, उगते हैं, पौधे उगते हैं, उसके जरिए से ऑक्सीजन हमको मिलती है, माहौलियात के अंदर बेहतरी आती है और दरख्त के लगने से कितने आदमियों को साया, शेड मैसर होता है। परिंदे दरख्तों के अंदर घोंसले बनाते हैं और उसके ज़रिए से इंसानों को कितना फ़ायदा मिलता है। इस्लाम ने कसाफतों को और जो गलाजतें हैं उसके लिए इस्लाम ने हमको तालीम दी है कि ऐसी गलाजतें को दूर किया जाए। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि जब इंसान मर जाता है, जानवर मर जाते हैं, तो उसको ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है और ज़मीन के अंदर एक कुदरती अल्लाह ने ताकत रखी है जो कसाफतें दूर कर देती हैं। दुनिया में आप देखते हैं हज़ारों लाखों जानवर मरते हैं, इंसान मरते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर दफन होने की वजह से वो ज़मीन के अंदर वो कसाफतें दब जाती हैं। वो पॉल्यूशन नहीं होता है फ़िज़ा के अंदर, जो दूसरी मरने से, आदमी को जलाने से जो पॉल्यूशन होता है वो नहीं हो सकता है। तो हम सबको चाहिए कि इसको दूर करने के लिए इन गलाजतों को, जिसके ज़रिए से बीमारियाँ फैल रही हैं, वबाएँ फैल रही हैं और लोग तरह तरह के मर्ज़ों का शिकार हो रहे हैं, हम सब लोग इसमें साथ दें और इस मुहिम के अंदर हम तमाम लोग हिस्सा लें। तो शम्स स्कूल जमात इस्लामी की तरफ से बेदारी पैदा की जा रही है। शम्स स्कूल में हमने चूँकि जमात इस्लामी से रिलेटेड स्कूल है ये, तो हमने ये भी तय किया है, यहाँ पर तय किया है
کہ شجرکاری مہم کے ذریعے سے پورے شہر کے اندر ہم گرینیس لائیں، اس کے اندر ہریالی پیدا کریں اور کثافتوں کو دور کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں۔